Hello. Hello, Hello. Ranjit sir. Hello. हाँ सर अब आ रही है. हेलो. यस सर. सर आ रही है. आ रहा है ना? कितना टाइम है? नहीं अभी आए पीडी चेंज हुआ So, yeah, so in today's lecture, we are going to start our deep Q learning. So we have understood that you have to change the view. Huh. Yes. So till now, what we have seen is that in the case of reinforcement learning, we need to take an agent, make it learn certain things for us, and there is an environment in which it has to understand how to work, manipulate, and behave well, behave optimally. And this optimally is something which is being quantized in terms of rewards. Rewards are going to be discounted as well as future rewards. So cumulative discounted future rewards needs to be maximized. Then we understood that there is something, a notion of value function, which means to say that for under under any given policy, uh, what is the value of an state, how good a state it is. And then we have seen that Q function, which is saying that act
a state, given a policy, if I take an action, how good that action is. So that's your Q function. And then we have seen that we can have a policy, and with that policy we can have a value function, and then we iterate over value function. With first iteration you have some random value function, then you can slightly improve, keep on improving. So any VSI is going to be computed from the previous VSI minus 1, and you keep on updating, and it has been seen that if you apply the optimality, Bellman optimality inside that, that's a recursive definition, you keep on getting better and better value functions. And for every value function, once you have got a value function, greedy policy is actually the policy that you are going to use. So what is that greedy policy? That for every state, you keep on saying that, okay, at this state, what action I need to take? I need to find out that at this state, if I take this action and this action and this action and this action, which one is better? So that's your essentially the greedy policy. And then we understood that you take a pi, some random pi, corresponding random value function, and then you play with this value function, iterate over it, and you can come back to your policy domain. So you can have a policy, you can have a value function, then you iterate over this, get certain slightly better value function, and then get a policy for this. And then for this policy, you again go to the value function and keep on getting better and better value functions. And ultimately, you see that value functions slightly keep on changing with very small numbers in numbers, but policy got saturated at some place. And that was the DP solution. But DP solution can only be applied, if you have, very small, simple game in which very small number of states are there, in which very small number of actions that you need to take. Right. So any questions so far? Anyone is having any question, you can ask. Okay. Yeah, so once we understood this stuff also, so now the point is that if you have huge amount of states, but still your actions are discrete. You have finite number of actions. A1, A2, A3, A4, A5, whatever, maybe 5, 10, 15 or 20, but they are not exponentially many, infinitely many, and they are discrete. If that's the case, but you have huge amount of states, even though for every state, all actions are possible. So state 1, all actions are possible. State 2, all actions are possible. So even if your state is if you are having huge amount of states, even with a finite number of actions, you are going to have huge amount of state action pairs. And for all of them, figuring out what's the best, it's really difficult. So now the point is that instead, so there is a way, DP solution, that you can apply over such systems, but we cannot apply because of specifically this constraint, that your state space is very big. What we can do, so instead of just iterating over pi to v to v to pi and keep on doing that, now we are trying to approximate the Q function. So instead of just computing Q function by iterating, which is guaranteed to give you some convergence, we started to move into another way, that now instead of computing my Q value
I am going to estimate it. How? So instead of computing my action, my q s comma a, I want some function approximator. Now, who is a function approximator for us? I am saying that we are going to use our best possible function operator, which is actually the neural network. That is why we are doing Q learning, but it's not a DP based Q learning. This is a basically deep learning based Q learning we are trying to do. So what does it mean? So this means that Q S comma A we want. So we are saying that this is actually a function, some function. Q is just a function. It's going to take two things for you, S comma A. It is going to give you the value. I am saying that we don't know this function. One way we can compute this function using DP, but we cannot solve that because of the constraints. Let us train a neural network parameterized over theta. So theta is actually my set of parameters. They are going to be constituting my Q function. They are going to be constituting a neural network which is going to take two things as input, S comma A, and is going to give me the corresponding Q value. So using DNN parameters, we are going to estimate the Q value for S comma A pair. And our assumption is that if we can get theta, optimal theta, whatever the Q function I will be getting, that's going to give me the Q asterisk S comma A. Any question? No. So this is essentially you wanted to do. So I have a neural network. It's going to take S comma A. It is going to give me this value. What is this value? If it is properly trained, it is going to give me the Q value of S comma A. And we are saying that you are going to get this S comma A, and then parameterized over theta t, because that is the current time for which your network is training. So with respect to time, I am saying that my network parameters are theta t. So what network is going to give me as an output is that with respect to theta t, or given theta t, what's the Q value of S comma A? But you assume that you are playing a game. You have your environment. You have a network which is going to give you, if you give it S comma A, it is going to give you that what is its Q value. So suppose that you have an environment in which you are playing something. So at S, if you take A, you move to S dash and got a reward R, that is SAR S dash. This is one single transition, SAR S dash. So if you play an episode, you will be having SAR S dash for each and every transition. So you keep on having all this transition, and that is your one episode. When you got terminated, that is one episode, and then you play for the second episode, the third episode, the fourth episode, and the fifth episode, and so on, which is being shown also over here. What is this?
So what is this? Before that, let us see what is this. Can any one of you tell us what is this? ये क्या है? कोई बताएगा? चिन्मय, बलकार, सुजीत, कोमल. आपको सुनाई दे रहा है? सुजीत, आपको सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर. हाँ, आपको ये टर्म कुछ पहले से देखी हुई लग रही है? इस टर्म में क्या है? एक आर है. ये आर क्या है? ये आर इसको रिवॉर्ड मिला था ना, इधर से इधर जाने पे ये आर मिला था. यस दैट इज आर ओवर हियर. देन एस डैश, इससे कहीं भी जाओ, यही कह रहे हैं ना, फॉर ऑल ए डैशेस मैक्सिमा ऑफ द क्यू वैल्यू. क्या कर रहा है ये कह रहा है यहां से इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो. लेट मी टेक. सो यहां से आप इधर जा सकते हो, इधर. All possible is, suppose that this one is the maximum which is going to take you over here, and the q value of this is the maximum. So r plus gamma times this is the thing which is going to be the q value of this guy. हाँ या नहीं? भूल गए? यस सर, यस सर. ट्रू, सिंपल. सभी को ये वाली बात याद आ गई? ओके. सो ये क्या लिख रहा है? ये क्या? अच्छा, ये क्या था? ये भी सबको याद है ना, क्वेश्चन पूछा था आपने. सो so इट मे नॉट बी दैट दिस स्टेट इज अ फिक्स स्टेट. इस स्टेट पे अगर ए एक्शन लेने पे यू मे रीच हियर, मे बी हियर, मे बी समवेयर एल्स. So you are going to take the expectation over all the possible states reachable from F after taking an action A. और उन सारी स्टेट्स पे R प्लस क्या जोड़ते हो? उस स्टेट से अगर मैं कुछ भी कितना निकाल सकता हूं? मैक्सिमम. तो तुम सारे एक्शंस में से जिस एक्शन से मैक्सिमम क्यू वैल्यू मिल रही है, तो दिस इज नथिंग बट द क्यू वैल्यू ऑफ S, A. चिन्मय पाटिल, yes, no? Sir, I have one question. पूछो. Sir, this q value here, q s a dash comma theta 1. So sir, it's this is a value function also, na? Because we are following pi to get an x and a dash. So this should be, I mean, value function. लेकिन ये तो क्यू फंक्शन है ना, ये पूरा तो क्यू फंक्शन है ना. हाँ, या दैट्स ओके. हाँ, तो एक्चुअली क्यू फंक्शन वैल्यू फंक्शन इक्विवेलेंटली देखे जाते हैं. तो दिस इज द क्यू वैल्यू फॉर एस कॉमा ए. यू एग्रीड? यस सर. तो अगर ये क्यू फंक्शन है, चिन्मय पाटिल, आपको समझ आ रहा है? ये यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर. तो बताओ कि ये तो पता ही है. आपको समझ में आ रहा है? सर इंटरनेट चले गया सर, रुको एक बार वापस बताना सर. मैं ये कह रहा था कि ये चीज आपको समझ में आ रही है कि ये क्यू फंक्शन है एस कॉमा ए का. यस सर. तो इसको निकाल क्यों रहे हैं? सर बट क्यू फंक्शन में तो सर प्रोडक्ट भी होता है ना, प्रोबेबिलिटी का. यार ये अरे हाँ, पूछो, तुम बोलो. पाटिल, चिन्मय पाटिल. सर मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं बस बोल रहा था कि वो गामा है डिस्काउंटेड के लिए. अच्छा, अब कोमल तुम बोलो. हाँ सर, हम ओवरऑल को मल्टीप्लाई भी तो करते हैं सर उसके प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट भैया वो अंदर होता था बेटा, ये तो डायरेक्ट फंक्शन लिखा है ना क्यू. दिस इज द क्यू वैल्यू फंक्शन कि एस से कहां पहुंचते हैं, उसमें गामा मल्टीप्लाई करके आर जोड़ दूंगा तो इसका बनेगा.
अगर मैक्स है इस लाइन में, याद है ओके सर। भाई? रुको, बोलो बोर्ड। देखो, याद करो क्यू फंक्शन क्या कहता है। यहां पे हूं, यहां ये एस है, ए ले लिया, यहां आ गए, ये हो गया, रिवॉर्ड कितना मिला? आर। क्या आर, और इससे कितना है? A1, A2, A3, A4। अगर ये सबसे ज्यादा देता है, इसका क्या मतलब हुआ कि Q एंड दिस इज से S3, तो Q S3, तो बेसिकली सॉरी S डैश कॉमा A3, Q of this is what you are getting. What is the maximum that you can get when you move in this? S dash कॉमा A3, Q वैल्यू ना उसकी, कोमल कुमार, नो? यस सर। तो उसमें गामा मल्टीप्लाई करके R से जोड़ेंगे अगर ये मैक्सिमा था इसमें। अदरवाइज यू राइट फॉर ऑल A1, A2, A3, A4 मैक्स ले लो सर और Q वैल्यू के साथ। हाँ बोलो सर, वी आल्सो मल्टीप्लाई द आई मीन। हाँ, तुम भूल गए हो ना, तुम लोगों ने पुराना वाला नहीं पढ़ा। वो तब मल्टीप्लाई करते हैं जब हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं ओके फॉर अ पाई। अच्छा सुन लो मेरी बात सभी लोग ध्यान से। सर। हाँ बोलो। सर एक बार क्यू वैल्यू और वैल्यू फंक्शन का डिफरेंस बताना ना, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं दोनों में। अच्छा, इस स्टेट पे पाई को फॉलो करो तो कितना रिवॉर्ड मिल सकता है मैक्सिमम? वो है वी पाई एस। बोलो। एस स्टेट से, हाँ ठीक? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। दैट इज द वैल्यू। ठीक है। इस स्टेट पे ए एक्शन ले लिया, ए एक्शन। अब यहां पहुंचा एस डैश। अब यहां से अगर मैं पाई को फॉलो करता जाता हूं, वो होगा क्यू पाई एस कॉमा ए। हाँ या ना? यस सर। सर, सर अगर प्रोसेस मतलब एंड में नहीं है, देन वी कैन से क्यू वैल्यू एंड if we are following pi, so pi a will be the, I mean, the action which we are going to take, I mean pi s at the state s. So sir, q value and v uh, q pi and v pi will be same if the process is not end. यार तुम्हारी आवाज गूंज जाती है, वो डिस्क्रीट हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता पूरी बात। थोड़ा धीमा कर दो आवाज इसकी। हाँ अब बोलो फिर से धीरे धीरे। सर मैं कह रहा था कि Q वैल्यू पाई, जो वी पाई है, जो वी वैल्यू है, तो वो क्या है, पहले हम पाई को फॉलो कर रहे हैं, तो देन हमको स्टेट मिल रही है, देन अगेन वी आर फॉलोइंग पाई। सो इसमें Q वैल्यू में क्या हो रहा है, पहले हम ए एक्शन लेते हैं, देन वी फॉलो पाई। सो अगर ये प्रोसेस एंड होता, देन वी वी पाई जीरो होती, वी विल बी जीरो। इन हाँ दैट केस Q ठीक है, वैल्यू विल। अरे समझ गए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई अगर प्रोसेस एंड हो गया, आखिरी एक्शन था, दैट्स ओके। और लेकिन तुम्हें क्यू वैल्यू और वी वैल्यू समझ में आ गई ना, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना? प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताओ। नहीं समझे? यस सर, अंडरस्टूड। हाँ चिन्मय पाटिल, तुमको ये समझ में आया? यस सर, यस सर। अब बलकार देखना बाद में बोल देगा कि एक बार फिर से बता दो मुझे वैल्यू फंक्शन और ये। बलकार कैन यू लिसन? नहीं सर। अच्छा
मैं आप लोग को ना एक बहुत खास बात बताता हूं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोर्स है। अभी इसमें बहुत सारा मटेरियल आएगा। अगर आप पीछे की चीज नहीं पढ़ के आएंगे ना तो हम लोग वहीं फंसे रह जाएंगे। हमें हर लेक्चर उसी दिन उसी वक्त पढ़ के लिख के खत्म कर देना है ताकि आप आगे की चीजें समझ सकें, वरना तो आगे ही हम लोग वहीं फंसे रह जाएंगे। इट इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट कि पिछला पूरा तैयार करके आए। सर अच्छा, आप एक मूडल पे अपलोड कर दीजिए सर, जो भी लेक्चर रिकॉर्डिंग एंड स्लाइड्स हैं जो भी। ये मूडल के बदल की पूरी लेक्चर सीरीज is being recorded. भेज दी थी। जितना अभी मैं पहले तक का पूरा क्यूब फंक्शन की लेक्चर सीरीज 3-4 घंटे में काफी अच्छे से बनाई हुई मैंने आपको भेजी हुई है। आपने देखी है? सर No. Yes, सर sir. अभी देख रहा हूँ। मैंने मेल किया था ना, उसमें बहुत सारे लिंक थे, उसमें से एक लिंक इसका भी था। ठीक है, ठीक है तो नहीं उसको सर, सर लिंक वो किसी और का है सर। रेनफोर्समेंट लर्निंग वाले उस कोर्स में वो रेनफोर्समेंट लर्निंग पे नहीं जाते हम। अरे मैंने देखा भैया, सर। सुमा आपको आई थी वो मेल? सुजीत आपको आई होगी। सुजीत आपने देखी है वो मेल? Yes, sir, but it is not going to reinforcement learning. It is going to some transformer or something. सर स्टैनफोर्ड के लेक्चर है ना रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाले? अरे नहीं भाई, मेरे खुद के लेक्चर हैं। अच्छा Yeah, कुछ but- नहीं, तुम एक काम करो, ये इंटरनेट चलता है इस पे, बट दिस इज नॉट शेयर्ड। अच्छा उस पे चलता होगा, नहीं बट उसमें इंटरनेट नहीं चलता। कोई भी आदमी यूट्यूब पे जाओ, सुजीत आप यूट्यूब पे जाओ। आप मोबाइल पे हो कि लैपटॉप पे हो? Laptop, sir. हाँ, You can tell आप me. यूट्यूब पे जाइए, sir. यूट्यूब पे लिखिए डीप लर्निंग एट IIT मंडी, मेरा चैनल मिलेगा आपको। उसमें RL की लेक्चर सीरीज है प्लेलिस्ट में, खोलो जरा। हाँ, प्लेलिस्ट में आपको हरे हरे स्क्रीन टाइप Yeah. की होगी, है सर, है ना? No. Okay. RL mini series is there. मिनी, Yeah. And उसको खोल के another- चलाओ, देखो चल रही है ना पूरी प्लेलिस्ट। अब Yes, एडवांस sir. वाली भी अभी इनको दे देंगे आज ही, इसी व्हाट्सएप आप इसमें One, जुड़ी two. हैं? अच्छा आप मत So जुड़िए there is अभी 4 इससे, lecture in this one. क्योंकि वो जाए। हाँ बस Yeah, उतना so पहले total पढ़ 4 लो। lecture is there. हाँ वो 1.5 घंटे Okay, के हैं, पहले उतना पढ़ लो, डीप क्यू लर्निंग क्लियर हो जाएगा आपको पूरा। शुरू से बहुत धीमे धीमे बताया हुआ है यही सारी चीजें। तो चिन्मय पाटिल अभी ये शेयर कर रहा है लिंक, उसको सब लोग खोल लें, चैट में शेयर कर दीजिए सुजीत। ओके सर। ठीक है, तो सुजीत आपको लिंक शेयर कर दे रहे हैं, आप वो लिंक से पढ़ लीजिए। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज कि अगर आप if you are at this state S, A एक्शन लेता हूं तो यहां पहुंच गया S डैश में। अब S डैश से मैं बहुत सारे एक्शन ले सकता हूं, लेकिन ये एक्शन लेने पे मुझे सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है, और वो है A मैक, A डैश मान। तो Q S डैश कॉमा A डैश। तो Q S डैश कॉमा A डैश का क्या मतलब होगा, कौन बताएगा? कोमल कुमार तुम बताओ।
Sir, max reward at the state S1 following sorry at the state S dash and following action A dash. I mean given मतलब by. ये कि इस जगह पे अगर ये एक्शन लेने के बाद कितना कमा सकता हूं, ठीक है? Yes. इस स्टेट पे ये एक्शन लेने के बाद कितना कमा सकता हूं, तो टोटल इतना कमा सकते हो और यही सबसे अच्छा है, मान ले रहा हूं, ठीक है? अब ये बताओ कि यहां से कितना सबसे ज्यादा कितना कमा सकता था मैक्सिमम ए एक्शन लेने के बाद? चिन्मय पाटिल तुम बता सकते हो? सर एस का एक्शन ए का रिवॉर्ड आर है, लिखे क्यू ऑफ एस डैश ए डैश, आर प्लस क्यू ऑफ एस डैश ए डैश और गामा लगा दिया। और अब ठीक है? ठीक Yes. है? यस सर अच्छा, यस सर। तो इसी को एक बंदा लिख दे रहा है आर प्लस गामा मैक्स ए डैश क्यू ऑफ एस डैश ए डैश फॉर ऑल ए डैश में सबसे ज्यादा जिससे आता है। ये ठीक है? यहां किसी को इशू है? No sir. नो सर। ये क्या आया? एस पे अगर ए ले लूंगा तो कितना कमा सकता हूं? तो ये बेसिकली निकाल क्या रहे हो? क्यू एस कामा ए, रिकर्सिव डेफिनेशन से। बस एक बात और बची कि इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो। क्या हो? इस चीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली जाती है, वही फॉर्मूला यहां पे लिखा है। ये अभी किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं? हाँ या नहीं? ये मुझे क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर एस स्टेट पे ए एक्शन लेते हो तो तुम्हारा तुम कितना रिवॉर्ड कमा सकते हो यूजिंग बेलमैन इक्वेशन, क्योंकि ये मैक्स वेकर ना ग्रीडी पॉलिसी को यूज करके। लेकिन मेरे पास एक नेटवर्क भी है और वो नेटवर्क मुझे डायरेक्टली एस कॉमा ए की बात भी बता सकता है। तो मेरे पास एक नेटवर्क है जो डायरेक्ट प्रिडिक्शन एस कॉमा ए का देता है और मेरे पास उसी नेटवर्क से पूछ करके एस कॉमा ए की क्यू वैल्यू निकालने का दूसरा तरीका भी है, वो है ये। नहीं आई समझ में ये वाली बात तो पहले पूछो, वरना मुझे समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है। आपको नहीं आया समझ में? सुजीत आ गया सर। आ गया? मेन बात यही है कि we need to understand I have a network। ये नेटवर्क को इससे फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर क्या जा रहा है, तो मैं इसके अंदर क्या भेजता हूं। अगर मैं एस कॉमा ए भेजूं तो ये मुझे क्यू ऑफ एस कॉमा ए बताएगा। अब ये सही है कि गलत है, ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, ये फोकस हुआ था अपना। अब ये सही है कि गलत है, ये कैसे पता चले? तो मैंने कहा कि भाई इन्वायरमेंट तो एस है, अगर उस पे ए एक्शन लेता हूं तो आई में रीच टू एस डैश। अच्छा, और इस एस डैश से मैं बहुत सारा ये में से किसी में भी जा सकता हूं और वो मुझे बता रहा है कि A1 लेने पे क्या होगा, A2 लेने पे क्या होगा, A3 लेने पे क्या होगा, A4 लेने पे क्या होगा। तो मैंने क्या किया, मे बी मैंने इसी के अंदर एस डैश A1 भी डाला, एस डैश A2 भी डाला, एस डैश A3 भी डाला,
और जो इनमें से सबसे ज्यादा आया उसमें गामा मल्टीप्लाई करके आर को जोड़ दिया। वो किसके बराबर होना चाहिए? क्यू वैल्यू। हाँ, जो इसने प्रिडिक्शन दिया था। यही है बेलमैन ऑप्टिमैलिटी। कोई भी आदमी आपसे, जब आप लोगों को याद हो, आप पहले लेक्चर में मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि सर जब आपको क्यू फंक्शन पता ही नहीं है तो आप इसे लॉस कैसे बनाओगे किसी भी चीज का? आप कैसे इसको सुपरवाइज करोगे और किस तरह से नेटवर्क ट्रेन होगा? तो मैंने बोला आपसे कि मेरे पास फैक्टोरियल कंप्यूट करने के बदले प्रिडिक्ट करना स्टार्ट किया। तो मैंने बोला फैक्टोरियल 5 बताओ। उसने कहा 540। मैंने कहा अच्छा 540 सही है। मैंने कहा अच्छा बोलो फैक्टोरियल 4 क्या होता है? उसने कोई संख्या बोली, मैंने उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माय प्रिडिक्टेड फैक्टोरियल 5 एंड कंप्यूटेड फैक्टोरियल 5? कंप्यूटेड फैक्टोरियल 5 में भी प्रिडिक्शन है 4 का और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्रिडिक्टेड में सीधा फैक्टोरियल 5 बाहर आया। सेम चीज यहां पे मैंने बोला बताओ मेरे को कि ये वैल्यू क्या है। इसने कोई तो वैल्यू बता दी। मैंने कहा अच्छा अब रुक जाओ, एस से ए लेने पे मैं कहां जाता हूं? यहां इनमें तो मुझे पता चल गया कि कौन सी स्टेट है। कौन बताएगा ये स्टेट? ये एस पे ए लेने की स्टेट मुझे पी फंक्शन ने बता दिया ना, मेरा एमडीपी। उस एमडीपी पे मैंने इसको अंदर पास किया, और जैसे ही मैंने इसको इसमें पास किया, आई यूज टू गेट एस डैश सम अदर स्टेट। उस स्टेट पे सारे एक्शंस मैंने इसके अंदर पास किए, वो स्टेट और सारे एक्शन एक एक करके, जिससे भी सबसे ज्यादा आया गामा मल्टीप्लाई करके आर जोड़ दिया। ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यही तो डेफिनेशन है रिकर्सिव। हैंड रेज करो अगर आप समझ गए हैं। सुजीत, चिन्मय, गुड, कार भी समझ गया। ओके, अब देखो बस यही है इसका लॉस फंक्शन। यहां पर एक बात लिखी होगी, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, बट अभी मोटे तौर पे देखना। ये है वाई आई। ये वाई आई के पहले ये क्या है? ये तो नेटवर्क का ही आउटपुट है। मेरा नेटवर्क है, नेटवर्क को एस दिया, नेटवर्क को ए दिया, थीटा पैरामीटर थे मेरे पास, उसने कोई एक वैल्यू दे दी। मैंने एस कॉमा ए दे करके जो स्टेट आई, जो भी मेरी स्टेट आई, उस स्टेट पे मैंने उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग मैंने सारे ए एक एक करके इसी नेटवर्क के अंदर डाले, और जिसमें मैक्सिमम मिला उसमें गामा को मल्टीप्लाई करके आर को लगा दिया, एंड यू विल गेट दिस वाई आई। मैंने कहा ये वाई आई से तुम कितना दूर हो? हाउ फार यू आर फ्रॉम दिस? और उसको तो ये एमएसई बन गया, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल दिया, एंड दिस इज माई लॉस। मैं अपने नेटवर्क को ऐसे ट्रेन करना चाहता हूं कि मेरा थीटा ऐसे निकले, ऐसे सेट ऑफ पैरामीटर्स मेरे नेटवर्क को मिले, सो दैट कि वो, दिस इज एक्चुअली बेलमैन ऑप्टिमैलिटी को एनफोर्स कर रहे हैं। तुम कुछ भी जवाब नहीं दे सकते, तुम्हें कंसिस्टेंट जवाब देना है। ये बेलमैन ऑप्टिमैलिटी से आ रहा है, जिसमें की प्रिडिक्शन है यहां पर। ये प्रिडिक्शन इस प्रिडिक्शन के साथ कंसिस्टेंट है। कैसे? तो इसलिए कि ये बेलमैन ऑप्टिमैलिटी से इस प्रिडिक्शन की वैल्यू निकाले अगर, तो ये वैल्यू निकालता है एस कॉमा ए की, और एक नेटवर्क से सीधा निकलवाई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, तो इसमें कुछ लोगों ने ऐसे बता रखा है कि ये जो नेटवर्क है उसके पैरामीटर थीटा आई का मतलब है पैरामीटर एट आईएथ स्टेट। आईएथ स्टेट पे उसके पैरामीटर क्या है? आईएथ स्टेप पे उसके पैरामीटर क्या है? और फिर तुम आईएथ स्टेप पे लॉस निकाल लेते हो।
और फिर तुम MSE निकालते हो और ये लॉस को डिफरेंशिएट करते हो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा आई के रिस्पेक्ट में, ताकि थीटा आई के चेंजेस तुम नेटवर्क को दे सको और नेटवर्क मेरा ट्रेन होता जाएगा 1 by 1। तो उसमें ये बोला कि ये नेटवर्क के करंट वेट्स है और ये वाली वैल्यू प्रीवियस नेटवर्क के वेट से निकालो। मतलब ये कि अगर ये नेटवर्क है, जब इसको ट्रेन किया तो ये नेक्स्ट सेट ऑफ पैरामीटर्स आ गए, तो जो ऑप्टिमैलिटी निकाल रहे हो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो कंप्यूट कर रहे हो, ये YI, ये पिछले नेटवर्क से निकाल लो और नए नेटवर्क से पूछते जाओ। अब नए नेटवर्क से पूछो कि भाई S, A की वैल्यू क्या है, बट इट इज इक्विवेलेंट एंड आल्सो बीइंग शोन कि ये दोनों ही, यहां पे भी थीटा आई रखो, यहां पे भी थीटा आई रखो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो एसेंशियली इट बॉइल्स डाउन कि आई हैव अ नेटवर्क, उसी पर मैंने S, A डाला और उसी पर मैंने S डैश A1, S डैश A2, S डैश A3, S डैश A4 भी डाला। जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आई उसमें गामा मल्टीप्लाई करके R जोड़ दिया और जो वैल्यू आई वो देखा कि वो S, A से कितना दूर है, Q ऑफ S, A के प्रिडिक्शन से। ओके, अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह के नेटवर्क की ट्रेनिंग कैसे करोगे? ये तो बड़ी ऑनलाइन टाइप की ट्रेनिंग हो रही है। इसकी ट्रेनिंग करने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए? तो बता रहा है इसको ट्रेन करने के लिए आपको एपिसोड्स बनाने होंगे। तो यू कैन हैव एन एजेंट और उस एजेंट से बोलो कि तुम गेम खेलो। तो एजेंट, तो आपके पास एक एजेंट है, उस एजेंट को क्या एक्शन लेना है, दैट इज पाई। पाई क्या है? अच्छा, इस केस में पाई क्या होता है? क्यू लर्निंग में पाई क्या होता है, कोई बताएगा? क्यू लर्निंग में पाई क्या होता है? पॉलिसी जो है, पॉलिसी, हाँ, बट वो पॉलिसी क्या होती है? ग्रीडी पॉलिसी है ना। यस सर। ये ग्रीडी पॉलिसी सबको दिख रही है ना, क्योंकि मैक्स लगा हुआ है, दैट इज योर पॉलिसी। हु इज सेलेक्टिंग एक्शन? एक्शन चुन कैसे रहे हो? अरे सारे एक्शन में से एक एक्शन चुनते हो जिसमें मैक्सिमा मिल रहा है, वही तो होता है ना ग्रीडी, हाँ है ना? यस सर। सो आपको एपिसोड बनाने रहेंगे। एपिसोड बनाने के लिए आपके पास एक पाई होना चाहिए, तो पाई तो हो गया ग्रीडी। तो आपके पास क्यू फंक्शन होना चाहिए, क्यू फंक्शन हो गया अनट्रेंड या व्हाटएवर लेवल पे भी जो भी नेटवर्क हो। अब आप किसी स्टेट पे हैं, मान लो कि आपके पास एक नेटवर्क है जो इनिशियलाइज्ड है विद सम वैल्यू। ये एक नेटवर्क है, इसको कभी भी तुम S, A दोगे तो ये तुम्हें एक वैल्यू देगा। जब ये ट्रेन हो जाएगा अच्छे से तो तुम्हें बेसिकली S, A पे एक वैल्यू दे रहा है ना। व्हाट इज दैट वैल्यू? Q S, A, है ना। मैंने कहा आपसे कि कोई भी गेम खेलने के लिए गेम प्ले स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि अगर आपको एक गेम खेलना है, क्योंकि जब तक आप गेम खेलेंगे नहीं तब तक आप डेटा बना नहीं सकते। और डेटा बनाने का मतलब है, हो सकता है आप शुरू में बड़ा खराब खेलें, चाहे भी आप जितना खराब खेलें, कभी ना कभी तो आप धीरे धीरे उसमें से कुछ जीतना स्टार्ट करते हैं। जब आप जीतना स्टार्ट करते तब आप सीखना स्टार्ट करते हैं कि वही काम जिससे कि आप जीते वही काम बार बार करो।
तो गेम खेलने कैसे? तो अगर गेम के रूल पता हो तो खेलने लग जाओगे। चाहे आप शतरंज खेलिए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि घोड़ा 2.5 घर चलता है, हाथी ये चलता है, बाकी ये, तो आप खेल लेंगे आनंद के साथ भी, क्योंकि आपको बस खेलना आता है। आप कुछ भी रैंडम स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क रैंडमली इनिशियलाइज्ड है। कभी ना कभी आप अपनी, और आपको कोई ना कोई ऊपर से लॉस दे रहा है। जब आप कुछ गलती करते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये गलती हुई और इस गलती को इस तरह से सुधारा जाए। तो हमें गेम प्ले के एपिसोड्स बनाने पड़ते हैं और उसमें एपिसोडिक लर्निंग होती है। कैसे? सो वी नीड टू जनरेट ट्रेनिंग डेटा। हमें ट्रेनिंग डेटा जनरेट करना पड़ता है। ट्रेनिंग डेटा बनाए कैसे? तो हम ट्रेनिंग डेटा बनाते ऐसे हैं कि वी हैव SART, सॉरी SAR और S-, कौन है यार इतने टाइम? सो हमको इसमें SAR और S-, ये 4 टपल चाहिए। जब भी मैं कोई एक्शन लेता हूं, कोई गेम खेलता हूं, तो वो गेम खेलते वक्त मैं उस गेम को खेलते वक्त मैं क्या करता हूं, मैं ये 4 ही चीजें मुझे मिलती है जिससे कि मैं आगे बढ़ता चला जाता हूं। सो वी आर प्लेइंग M एपिसोड्स। फॉर ऑल दीज एपिसोड्स वी आर गोइंग टू हैव T स्टेप्स, 1 2 3 4। तो जब मैं पहला गेम खेलूंगा, मैं गेम कैसे खेल सकता हूं? मैं कोई भी स्टार्टिंग स्टेट पकड़ूं, मैं एक स्टार्टिंग स्टेट लेता हूं। एक प्री प्रोसेसिंग है। फाई इज जस्ट अ प्री प्रोसेसिंग। व्हाट इज प्री प्रोसेसिंग? सेवरल टाइम्स ये एक जनरल एल्गोरिथम लिखा है, you forget about pre-processing, but usually pre-processing mean कि जो इनपुट डेटा आता है मेरे पास, उस इनपुट डेटा को मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता हूं, करना पड़ता है, वरना नेटवर्क जरूरी नहीं कि पूरी बात समझ सके। आप बाहर ले जाइए उसको। So I need to select an action with some small probability gamma। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर एक गेम के सारे रूल हैं तो फिर आपको करना क्या है? आपको देखना है कि मेरी स्टेट क्या है, उस स्टेट के करस्पॉन्डिंग ये एक्शन लेने में, ये एक्शन लेने में, ये एक्शन लेने में, ये एक्शन लेने में, ये क्यू फंक्शंस। तो आपके पास एक नेटवर्क है जो कि क्यू फंक्शंस बता रहा है आपको। उस क्यू फंक्शन से आप पूछते भाई ये लेने में क्या है, ये लेने में क्या है, ये लेने में क्या है, और उसमें से ग्रीडीली आप एक चुन लेते हैं एक्शन और आप एक नए स्टेट पे आ जाते हैं। उस नई स्टेट पे फिर से आप पूछते हैं इस एक्शन को लेने में, इस एक्शन को लेने में, इस एक्शन को लेने में, इस एक्शन को लेने में क्या बेस्ट है? नेटवर्क ने बोला ये बेस्ट है, मतलब क्यू फंक्शन, आप वो ले लेते हैं। तो स्ट्रेटजी आपकी पाई क्या है, पॉलिसी क्या है? पॉलिसी फिक्स्ड है, कोई ग्रीडी पॉलिसी है। क्यू फंक्शन नेटवर्क है, उस नेटवर्क से आप पूछ पूछ के आगे बढ़ रहे हैं, और अभी नेटवर्क चेंज नहीं कर रहा है, अभी नेटवर्क फिक्स है। रैंडम नेटवर्क हो सकता है, गलत जवाब देगा आपको शुरू में, लेकिन आप गेम खेलते जा रहे हैं। अच्छा, गेम खेलने का क्या मतलब है? आप इस स्टेट पे थे S, आपने A एक्शन लिया, S A, रिवॉर्ड कितना मिला R, नेक्स्ट स्टेट क्या हुई S-, ये एक टप्पल बन गया। ये एक ट्रांजिशन आ गया आपके पास, सिंगल ट्रांजिशन आपको मिल गया कि ये मेरा एक ट्रांजिशन है। इसी तरीके से आपको सेकंड ट्रांजिशन मिलेगा, थर्ड ट्रांजिशन मिलेगा, फोर्थ ट्रांजिशन मिलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है? तो ये कौन कौन लोग यहाँ पर हैं जो इंस्टीट्यूट में हैं? कोमल, व्हेन यू आर इन द इंस्टीट्यूट, मैंने आपको बताया था ना कि आपको यहाँ पे आना चाहिए। सर आई मिस्ड बस टुडे। मिस अब से ना हो। और सुजीत, Yes, आप sir. भी क्लास में यहीं आ जाया करिए, आप तो यहीं पे हैं ही। यस सर। और जो लोग भी इंस्टीट्यूट के अंदर हैं वो सारे लोग यहीं पे आया करें,
चिन्मय पाटिल, आप इंस्टीट्यूट में कि बाहर हैं? सर आज ही आया चिन्मय, मैं चिन्मय नेक्स्ट क्लास से आया करेंगे आज, लाइक क्वारंटीन से निकले ना। ठीक है, क्वारंटीन या ये जो कुछ भी आपके जैसे खुल जाता है, मतलब फॉलो द रूल्स प्रॉपरली, एंड वंस यू आर अलाउड टू मूव टू कैंटीन एंड इधर और उधर, तो फिर तुम इधर भी होगे सभी कोई। ओके, तो ये सारी जो कहानी लिखी हुई है ये कुछ नहीं लिखा है, ये आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बट आवर एक्चुअल पॉइंट इज कि आई हैव अ स्मॉल डेटाबेस। उस डेटाबेस में सेव क्या करूंगा? SARS क्या क्या सेव करूंगा? SARS। फिर से बोल रहा हूं, SAR कहां से आया? तो S पे A कहां से आया? S पे A ऐसे आया कि S पे मैंने सारे एक्शंस लगाए और उन एक्शंस में सबसे ज्यादा Q वैल्यू किस में मिली? मान लिया किसी में मिली, वो वाला एक्शन चुना गया। और एक्शन पे Q वैल्यू कौन बता रहा है? मेरा नेटवर्क बता रहा है, अच्छा खराब चाहे जैसा हो। तो S पे A मिला, R मुझे इन्वायरमेंट ने दिया, S मुझे इन्वायरमेंट ने दिया, और SARS' एक लाइन बन गई। अब नई स्टेट S' है, इस नई स्टेट पे फिर से मैंने सारे एक्शंस ट्राई किए जिसमें सबसे ज्यादा मिला, और उस पे मैं आगे बढ़ गया। तो मेरे पास, तो दिस इज एक्चुअली गेम प्ले, आई कीप ऑन प्लेइंग दिस गेम। तो मुझे एक ट्रांजिशन, दूसरा ट्रांजिशन, तीसरा ट्रांजिशन, चौथा ट्रांजिशन, आई गेट सेट ऑफ ट्रांजिशंस। इसमें एक छोटा सा वेरिएशन है जिसको कहते हैं एप्सिलॉन ग्रीडी स्ट्रेटेजी, जिससे कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं। और वो क्या होता है कि विद 95% प्रोबेबिलिटी मैं वही एक्शन चुनूंगा जो मुझे बताया गया, एंड विद 5 प्रोबेबिलिटी मैं रैंडम एक्शन चुनूंगा। इसको कहते हैं एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी। और जब मुझे इस पॉलिसी को पार करते हुए मैं गेम खेलता जाऊंगा, मेरा एक ट्रांजिशन, दूसरा ट्रांजिशन, एक एपिसोड खत्म हो गया, देन आई प्ले द सेकंड एपिसोड, देन आई प्ले द थर्ड एपिसोड, देन आई प्ले द फोर्थ एपिसोड, और ये जो मेरे पास भर जाएगा इसको कहते हैं रिप्ले बफर। अब इस रिप्ले बफर के अंदर से मैं एक एक करके टपल उठाऊंगा, और उन टपल्स में SAR और S' है। मैं SAQ फंक्शन में पास करूंगा, मुझे एक वैल्यू मिलेगी। ओके, S' के करस्पॉन्डिंग ऑल एक्शंस एक एक करके मैं इसी नेटवर्क को पास करूंगा, जिसमें सबसे ज्यादा आएगा उसमें गामा मल्टीप्लाई करके R जोड़ दूंगा, और वही मेरा लॉस होगा उस पर्टिकुलर टपल के लिए। फिर मैं इसके दूसरे टपल के लिए करूंगा, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवे के लिए, एंड सो ऑन। सुजीत, आपको समझ में आया ये वाली बात? Yes, sir. यस सर। But it is lengthy process. Looks like इट्स अ वेरी lengthy स्लो प्रोसेस। हाँ, Yeah, well, I'm going. that's true, and RL algorithms are going to take huge amount of time because there is no supervision. It is just like कि आप बहुत ही खराब खेल रहे हैं, लेकिन आप उस खराब खेल को ही अच्छा मान के सीखते जा रहे हैं, लेकिन धीरे 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 आप उसी खराब में कुछ अच्छी चीज करेंगे जिससे कि आपको कभी हाई रिवॉर्ड मिलेगा। और जिन स्टेट्स के, किसी स्टेट के ऊपर उन एक्शंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी जिनसे कि ज्यादा रिवॉर्ड आता है अमूमन ऑन एन एवरेज। और धीरे धीरे करके आपका नेटवर्क ट्रेन होगा। RL एल्गोरिथम्स जल्दी नहीं ट्रेन होती क्योंकि वो जनरलाइज्ड लर्निंग कर रहे हैं। वो ये नहीं सीख रहे कि अगर गड्ढा आता है तो गड्ढे को पार कैसे करते हैं। वो 100 बार गड्ढे में गिरेगा। RL एल्गोरिथम में अगर आप कोई रोबोट को ट्रेन करते हैं और वो ऐसे करके एक टेरेन है,
तो उसको पता नहीं कि यहां से ये उतर के यहां जाएगा, फिर गिर जाएगा, यहीं टर्मिनेट हो जाएगा, अगली बार फिर यहां टर्मिनेट हो जाएगा, फिर टर्मिनेट हो जाएगा, 5 बार 10 बार हो सकता है। उसके बाद उसको पता चले कि यहां से यहां कूद सकते हैं, यहां कूद सकते हैं। और ये आपको भी नहीं पता होगा, जो उसको पता चल जाएगा क्योंकि वो उतनी बार फेल होगा, क्योंकि वो उतनी सारी ट्रेजेक्ट्री है। दिस इज वन ट्रेजेक्ट्री, यहां से गया, टक डक 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 डक, गिर गया, खत्म। फिर यहां से चलना स्टार्ट किया, डक 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 डक, फिर गिर गया, खत्म। वो गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। थोड़ी देर में उसको पता चलेगा, अरे यार यही एक्शन कर रहा हूं, बार बार गिर रहा हूं। एक्सप्लोर एप्सिलॉन वाले से वो दूसरा एक्शन करेगा, हो सकता है वो एक्शन करने से फायदा मिला, हो सकता है थोड़े और एक्शन करने के बाद फायदा मिला, हो सकता है कि बहुत देर के लिए वहीं स्टक हो गया, तो उसको कई बार खींचना पड़ता है। बट यूजुअली एक एक दिन, दो दिन नेटवर्क ट्रेन होते रहते हैं छोटे छोटे कामों के लिए, लेकिन वो जनरलाइज्ड लर्निंग कर लेते हैं। अब अगर आपका नेटवर्क इस पे चलना सीख गया, तो वो इस पे भी चलेगा, वो इस पे भी चलेगा, वो इस पे भी चलेगा, हो सकता है कि वो इस पे भी चल जाए। लेकिन अगर सुपरवाइज लर्निंग किया तो नहीं सीखेगा ये चीजें, जब तक आप उसको दिखाएंगे नहीं हर तरह के टेरेन में चलना। ओके, सो ये सब मैंने ऐसे लिख रखा है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये मेरे उसमें दिया हुआ है, आप लोग वहां से एक बार सुन लेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। तो एसेंशियली ये डीप न्यूरल नेटवर्क जो हम ट्रेन कर रहे हैं, ये कर क्या रहा है? ये क्यू फंक्शन लर्न कर रहा है, एसटी स्टेट इसके अंदर जाएगी, और ये STA1, STA2, STA3, STA4 ये चारों चीजें बाहर दे सकता है। ऐसा नेटवर्क भी बनाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ST ले और AT ले और उसके करस्पॉन्डिंग एक सिंगल वैल्यू दे। इट डिपेंड्स, जैसा नेटवर्क आप बनाना चाहें। बट बोथ ऑफ दीज नेटवर्क्स आर इक्विवेलेंट। तो एक्सपीरियंस रिप्ले आपके पास होगा, मैंने आपको बताया, सॉरी बफर, रिप्ले बफर होगा, और इस रिप्ले बफर के थ्रू आप ट्रेनिंग करा पाएंगे। तो ये होगा इस तरीके से एक रिप्ले बफर जिसमें अलग अलग एंट्रीज भरी होंगी। दिस इज लाइक S5 पे A9 लिया, रिवॉर्ड आया R7 और स्टेट पे पहुंचे S22। ये एक लाइन है। इस लाइन के करस्पॉन्डिंग लॉस क्या होगा? तो आपके पास नेटवर्क है, उसमें S5 अंदर डालेंगे, A9 अंदर डालेंगे, वैल्यू आ जाएगी, और साथ ही साथ हम S22 अंदर डालेंगे, और A1 S22, A2 S23, A3 S24, A4, और जिसमें सबसे ज्यादा आएगा उसमें गामा मल्टीप्लाई करके R को जोड़ के दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आया उसको यहां रख देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टपल के लिए यही करेंगे, और जो अब लॉस आएगा उसको भी इसी में जोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट टपल के यही करेंगे, फिर उसको भी इसी में जोड़ देंगे। ये टोटल लॉस बनेगा। लेकिन पूरे एक्सपीरियंस रिप्ले से आप बैचेस बनाएंगे छोटे छोटे, उन बैचेस के करस्पॉन्डिंग लॉस निकालेंगे और लॉस को सेव करेंगे। लेकिन यहां पे एक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं ऑन पॉलिसी और ऑफ पॉलिसी, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन आपको करना क्या होगा कि आपने जितना भी ना डेटा है वो सारा डेटा उठाओ, गेम खिलाओ, पहले नेटवर्क को डेटा बनाओ, बने डेटा के करस्पॉन्डिंग पूरा लॉस कंप्यूट करो और नेटवर्क को बैक प्रॉप करो। जैसे ही नेटवर्क को बैक प्रॉप आपने किया, आपके पास नए सेट ऑफ पैरामीटर्स आ गए। फिर आप अगला बैच अंदर डालो, फिर से लॉस लो, फिर से नेटवर्क को ट्रेन ट्वीक करो, फिर अगला लॉस, फिर अगला लॉस, फिर अगला लॉस। तो एक एक करके आपके नेटवर्क में बैचेस अंदर जाते जाएंगे।
लॉस आपको मिलता जाएगा उस बैच के लिए, और नेटवर्क ट्रेन होता जाएगा। चिन्मय पाटिल, आपको समझ में आया? बलकार? यस सर। आ गया। और बलकार आपको? यस सर। ठीक, ठीक है, तभी इतना ही। अगले लेक्चर में मैं पहले इसका कुछ एरर बताऊंगा, मतलब एक चैलेंज या इशू, और उस इशू के आगे हम लोग ये देखेंगे कि वो अब एक्चुअली क्या है ना, कि ये हो गया डीप क्यू लर्निंग, यही है बेसिक डीप क्यू लर्निंग। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल से एल्गोरिथम, बट इस सिंपल से एल्गोरिथम के ऊपर कम से कम नहीं तो 2 से 3 डिफरेंट वेरिएंट आएंगे, वो एक एक करके इसकी प्रॉब्लम बताएंगे। कोई कहेगा इसमें एक्सपीरियंस रिप्ले होता है, कोई कहेगा इसमें मैक्सिमाइजेशन बायस होता है, कोई कुछ और बात कहेगा। तो ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू से सो मेनी थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स, और वो अपकमिंग नेटवर्क्स उनको एक एक करके ठीक करते जाएंगे। तो लेकिन अपने आपके दिमाग में ना डीप क्यू लर्निंग बहुत ही साफ तौर पे क्लियर कट छपी होनी चाहिए। इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को सुने, और अभी क्या नाम है इसका, गीतांजलि, आपको भी सारी मेल्स आती है ना, तो गीतांजलि इज गोइंग टू शेयर जो पिछले साल वाला मेरा जो लेक्चर था, जो मैंने डीप एनफोर्समेंट लर्निंग में पिछले साल पढ़ाई थी, वो वाला पूरी लिस्ट आपको शेयर कर दी जाएगी। मतलब आरएल ही नहीं, उसमें सारे के सारे कोर्स के लिंक होंगे। अब आप एक एक करके वहां से भी सुनते जाएं। जो यहां पढ़ा रहा हूं ये उसका सबसेट है, वो सुनना जरूरी है, क्योंकि वहां मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत सारी चीजें बताई होंगी। जो चीजें ना समझ में आए वो पूछते जाओ, और वहां पर सारी चीजें डिटेल में कवर्ड होंगी। तो अभी वो भी आपको शेयर हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई इशू, कुछ कहना है किसी को? तो इसकी तैयारी करते रहे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा मंडे टू थर्सडे को होगा। थर्सडे को हम एक्सपीरियंस रिप्ले के प्रॉब्लम्स देखेंगे, और उसके बाद एक एक करके उनके अलग अलग आने वाले सॉल्यूशंस को देखेंगे। आप बड़े सटल वेरिएशंस होंगे, जब तक आप डीप DQN नहीं पूरा समझे होंगे तब तक आप आगे की चीजें समझ भी नहीं पाएंगे। तो प्लीज DQN को पूरा अच्छे से समझ के आइए, ठीक है? बलकार, आप पढ़ के आएंगे अगले लेक्चर में पूरा? यस सर। हाँ बोलो। हाँ सुजीत। नो सर। चिन्मय, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, वो चिन्मय मेरे साथ ही है सर, मेरे रूम में।